Hello everyone, good morning. Welcome me back in the topic application of trigonometry. As we have discussed yesterday that very few things from the trigonometry we needed in this topic, but जो भी those all concepts which are needed, those all values which are needed, those are really very important. So please, it's a kind request before I tell you, you start remembering those values. I told you 30, 60, 30, 45, and 60. That's it. And that too of sine, cos, and tan. Okay. And as I have already said, only you need the value is nothing but maximum time is tan. Okay. Tan to at least you have to remember. Rather you can remember, right? है ना बहुत simple है बहुत easy है and that too very less as compared to trigonometry and already you all have done it in the trigonometry, so let's not consider this is difficult. Yesterday I asked you to complete these four questions. I don't know, no one has replied on this, so expecting you all to watch and reply on it. Okay, everyone, let me tell you, group में reply कर सकते हो, comment कर सकते हो. तो why I asked you to reply, let me tell you. देखो, you are not just directly in front of me, so when you are not in front of me, what happens is I don't really realize that whether you're doing or no. At the same time, I don't even understand that whether you're understanding the concepts or no, whether you know or whether you all are very particular or consistent enough to study. All these things, if I want to know, I cannot call each and everyone and check. I normally call one of you all so that I understand, okay, yes, the things are going properly. Okay, I'm not fast or we are following the syllabus as per the school. So only that I come to know. But I won't understand whether each and one of you are doing or no. So for that, I'm really expecting you all to be responsible and comment, talk to me, give or send messages, ask doubt. Okay, so this is very much required. Okay, so let's not waste our time in these questions because already these diagrams will come in the further questions. So that time whenever it comes, I will surely discuss all that. But anyway, फिर भी if today you solve and if you get to know that there is some doubt, I will surely help you in that. Unless until you ask me doubt, now I am not going to help you. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत मस्त है टॉपिक. अभी यहाँ से बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही रख रहा हूँ और मैं ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा. ठीक है, ऐसे सॉल्व करूँगा. तो दिस इज द प्लेस एंड हियर इज द क्वेश्चन. सो एवरी टाइम इन दिस मैनर आई विल चेंज द क्वेश्चन एंड वी ऑल विल रीड इट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1. इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ मैन आर द सेम, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज. देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन देखने के बाद, लेकिन बहुत ही सिंपल है. देखो, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. कभी भी जब भी कोई भी क्वेश्चन आए इन दिस टॉपिक, आपको डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है. तो मैं डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता हूँ आपको. ये रही मेरी पेंसिल, ये रही माई शेड एंड डायग्राम. तो डायग्राम को क्या करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले मैन ग्राउंड पे ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, राइट. ऑलवेज रिमेंबर एनीवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड भी चाहिए यहाँ पे. एनीवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, राइट ना. तो वेदर इट इज अ पोल, वेदर इट इज अ बिल्डिंग और टावर, एनीथिंग that will be always perpendicular. ठीक है, so this is the man. So let AB be the man. Shadow is normally falls on the ground. So here is the shadow of the man. BC is the shadow. And now I'll complete the triangle by joining AC. Clear? Angle of elevation of sun means this angle. So from here, if I check the sun is somewhere here. So you can easily see this is the angle of elevation of the sun. Remember, to the ground. Never consider this as angle of elevation. Always it is angle C. Okay, which is made on the ground, horizontal line. Remember, this is very important. Remember, horizontal line की तरफ जो होता है उसको angle of elevation of sun बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इल्यूशन. ये हमने देखा था किसमें, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल में कहीं ना कहीं देखा होगा.
कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होता है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट आई नो दैट द लेंथ एंड हाइट, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो मैं पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, एंड आई विल सॉल्व द सम। लेट ए बी द मैन एंड बी सी बी द शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। This description is required and we know that AB will be equal to BC. ये क्या है, given है। Now if I want to find theta in terms of AB and BC, which ratio do you think we should take? It is opposite and adjacent, so it is tan of theta. So tan of theta will be equal to AB upon BC. They are equal, that means it will be 1. Tan theta is equals to 1 means what value of tan will be 1? It is tan 45. तो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45, है ना, बहुत सिंपल। कुछ नहीं है, ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए आई टुक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसके बाद तो आप लोग खुद से आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। यहाँ पे उल्टा दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज गिवन, तो अभी आप लोग ठीक से कर सकते हो। देखो चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। ये रहा मेरा पोल, जो बिकॉज पोल दिया हुआ है, this is the ground, angle of elevation of sun is 60, then the pole of height 6 meter, cast a shadow of length। तो इसका shadow का length क्या होगा, imagine ये है r, तो qr is shadow, तो let pq be the pole and qr be the shadow। ठीक है, क्यू आर तो शैडो हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, होप यू अंडरस्टैंड। एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना होता है, 60 डिग्री, बराबर है। तो ये रहा 60 डिग्री। अभी हमें क्यू आर फाइंड करना है, पी क्यू इज गिवन। सो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी आई एम सॉरी, इन टर्म्स ऑफ 60 डिग्री, दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। आपको पता है टैन ही यूज़ करना है, टैन ऑफ 60 डिग्री, और टैन ऑफ एंगल आर भी आप लिख सकते हो, उसके बाद 60 पुट कर सकते हो एज यू विश, इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये हमेशा लिखना ठीक से। टैन 60 क्या होता है, √3, पी क्यू 6, क्यू आर पता नहीं, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6/√3, इसको इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 3, तो 2√3 इज माई आंसर। ऑफकोर्स यू हैव टू राइट इन मीटर, तो ये रहा मेरा यूनिट मीटर। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। दिखने के लिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिखते हैं लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। प्रॉपरली इसको रीड करो एंड ट्राइग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो मैं इन द बिगिनिंग स्टेजेस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इन द लेटर स्टेज आई वोंट बी ड्राइंग एनी डायग्राम, यू हैव टू अंडरस्टैंड ड्राइंग डायग्राम एज वेल। तो क्या सोच रहा था कि बिगिनिंग में ही जब आप लोग क्वेश्चन रीड करते हो या फिर जब मैं शुरू करता हूँ तब आप लोग पॉज करके आप लोग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखते हैं डायग्राम को, देखते हैं। और टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो चलो ग्राउंड पहले ड्रॉ करो, ऑलवेज रिमेंबर कभी भी पहले ग्राउंड ड्रॉ करना होता है। तो ये रहा टॉवर है ना, ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऐसे कोई भी पॉइंट है ऑन द ग्राउंड है, विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो डिस्टेंस है ये है 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब सी से अगर देखा जाए तो ये जो ए पॉइंट है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? जब आप नीचे से ऊपर देखते हो तो कितना आपको टिल्ट करना पड़ा, उस टिल्ट को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना आपको आपके नेक को टिल्ट करना पड़ा, दैट टिल्ट, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, सी पॉइंट से देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितना है, कितना है, टू बी 60 डिग्री।
तो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, दैट्स इट। तो लेट आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखो ए बी बी द टावर जो भी है, एंड सी इज अ पॉइंट सच दैट बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर। कुछ नहीं, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। अभी ए बी फाइंड करना है तो ये अपोजिट एडजेसेंट पता चले कि आपको tan ऑफ 60 ए बी अपॉन बी सी। 60 tan ऑफ 60 क्या है, √3। ए बी क्या है, ए बी सी क्या है पता नहीं, तो कितना होगा ए बी इज इक्वल टू ऑफकोर्स 60 √3 एंड दैट्स द आंसर। आंसर शुड बी रिटन इन मीटर। ये रहा आपका आंसर। देखो कितना सिंपल है, ओके बहुत ईजी है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन यू गेट योर आंसर। ओके ओके ओके, गलती से यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 4th क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया, लेकिन है वहाँ पे, है ना, दिख रहा है आपको। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, तो पोल है, पोल तो ऑफकोर्स ग्राउंड पे होता है, इसकी हाइट है 6 मीटर। कास्ट शैडो, शैडो कास्ट कर रहा है ना, ये पी क्यू पोल है, क्यू आर शैडो है, वो 2√3 मीटर है। सन एलिवेशन, तो ये रहा थीटा, सन एलिवेशन टैन थीटा। समझ में आ रहा है आपको अभी, है ना, 6/2√3। हाँ, ये मैंने पर्पजली सॉल्व किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। कितना होगा देखो, 6/6 होगा एंड इंटू √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा √3। तो टैन की कौन सी वाली √3 है, टैन 60, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंड दैट्स इट। आपको आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना, बराबर है ना। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 6th वन मार्क करो एज इंपॉर्टेंट। 6th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। मुझे लगता है टेक्स्ट बुक में कुछ सॉल्व होगा या फिर एक्सरसाइज में होगा, पता नहीं, बट टेक्स्ट बुक का ही 100% टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। देखते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। देखो दो चीज़ें होती हैं, ट्री इज अपरूटेड एंड ट्री इज ब्रोकन। तो ये रही मेरी ट्री, है ना, दिस इज ब्रोकन। तो कैसे होता है ब्रोकन, कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्री ब्रोकन है, ठीक है, समझ में आ गया ना। एंड अ ट्री इज अपरूटेड, मतलब क्या होता है, नीचे गिर गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये रूट्स है उसके, ये नीचे गिर गया। दिस इज अपरूटेड एंड द फर्स्ट केस इज ब्रोकन, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन हियर इज नथिंग बट इट इज ब्रोकन नॉट अपरूटेड, ठीक है। द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ये ट्री है जो ग्राउंड पे है, पूरी ट्री है, अभी तक ब्रेक होनी बाकी है, देखते हैं बाकी। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द रूट। द टॉप, ये गिर के यहाँ पे ऐसे टूट गया एंड गिर के ये टॉप जो है वो स्ट्रक ऑन द ग्राउंड, है ना, स्ट्रक ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कट होके ये टूट के यहाँ पे गिर गया, ठीक है। एट एन एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। एट डिस्टेंस 30 मीटर, तो ये 30 मीटर है, ठीक है। तो लेट अस सी, ए बी इज अ कंप्लीट ट्री, इज ब्रोकन एट सी, टचिंग द ग्राउंड एट डी। तो जो ए पॉइंट है वो ग्राउंड को डी से टच कर रहा है, ओके, ऐसे गिर के वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड होल हाइट ऑफ द ट्री। होल हाइट मतलब क्या फाइंड करना है, हमें सी बी फाइंड करना है, सी बी फाइंड करना है, बेसिकली हमें ए बी फाइंड करना है पूरा का पूरा, और फिर ए सी फाइंड करना है। लेकिन ए सी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ए सी तो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है। हाँ, लेकिन सी डी तो राइट एंगल ट्रायंगल में है, सी डी एंड ए सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वही तो पार्ट है, राइट। तो मुझे क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, ये करना है। तो मुझे मैं बी सी फाइंड करूँगा, सी डी फाइंड करूँगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो बी सी के लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो बी सी अपोजिट साइड है, तो मेरे पास होगा tan ऑफ 30
आपको डिस्क्रिप्शन तो लिखना पड़ेगा, सो आई एम नॉट राइटिंग डिस्क्रिप्शन आफ्टर दिस, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एवरी टाइम। tan of 630 इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी इज पता नहीं क्या है, बी डी इज 30, तो 30/√3 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी मिल रहा है मुझे, √3 से मल्टीप्लाई किया तो 10√3। कैसे आया? √3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके देख लो, मीटर में आंसर है। ठीक है, सी डी भी फाइंड करना है। अभी सी डी इन टर्म्स ऑफ दिस 30 क्या है? हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड है, तो cos ऑफ 30 साइन भी चल जाएगा बिकॉज बी सी इज नोन टू यू नाउ। लेकिन हाँ, जो दिया है उसी को देख के हम लोग देखेंगे cos ऑफ 30, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा? बी डी अपॉन सी डी। cos ऑफ 30 क्या होता है? √3/2। होप यू रिमेंबर दैट। बी डी इज 30, सी डी पता नहीं। सी डी इज इक्वल टू, आप रिप्लेस कर देंगे, सी डी इज इक्वल टू 30 × 2/√3। ऑफकोर्स दिस कैन बी मल्टीप्लाई बाय √3, ये होगा 20√3। तो क्या होगा? ए बी अकॉर्डिंग टू द हमारा बेसिक जो क्वेश्चन है इसमें से अगर मैंने पुट कर दिया तो यस, आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज ए बी इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। सी डी क्यों? वो तो इक्वल ही है, बराबर ना। 10√3 प्लस 20√3, 30√3 मीटर इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, डन हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसे कुछ तो दिया है, यूज √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, देखो अभी तक मैंने कहीं भी √3 की वैल्यू पुट नहीं की, हाँ, लेकिन लास्ट में, सिर्फ लास्ट में हम लोग इसको पुट करेंगे इंटू 1.732। रिमेंबर, बिल्कुल भी इन बिटवीन डोंट पुट द वैल्यू ऑफ √3, ओनली एट द लास्ट। ओके, नोट माई वर्ड्स, only and only at the last you have to put the value of √3 at last, after rationalizing and after doing everything. Okay, keep that in mind, always remember. तो आप तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 होगा, पॉइंट होगा, 2 3 6, 3 3 9, 7 3 21, 2 कैरी 3 2 5। तो ये रहा मेरा आंसर 5196.0। ऑफकोर्स वो तो हो जाएगा मीटर। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, सी इट्स ड्यू टू हेडेक। आई हैव सम हेडेक इशू राइट नाउ। एनीवे, हम लोग करते हैं उसको। ओके, 0 30 वाला 0 है, 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, 2 कैरी एंड 5, 1 2 3 1 2 3। तो इट इज़ 51.96 मीटर इज नथिंग बट माई आंसर। सॉरी फॉर द प्रीवियस एरर। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ द टॉपिक इज। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ठीक है, एज यू डिड नॉट कंप्लीट द यस्टरडेज वर्क एंड आई डिड नॉट फाइंड वेदर यू हैव डन इट और नो, आई एम टेकिंग स्लो इन दिस मैनर। तो आज के लिए आपका काम मैं बोलता हूँ क्या करना है। ऑफकोर्स फर्स्ट 6-7 क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करने ही है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम लोग कितने करेंगे कंप्लीट, मैं भी देखता हूँ। हाँ, फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, ये जो नीचे वाला जो दिया है ना, ये नहीं करना है। चलो 6 तक ही आपको कंप्लीट करना है, 1 to 6 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज का काम इतना ही है। कल से हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे एंड फास्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काम देता हूँ मैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। और आपने ये 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 वो भी कंप्लीट करो एंड मुझे इन्फॉर्म भी करो। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।